जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब बैठ जाओ। अभी अपने स्थानों के ऊपर चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से टेस्टमनीज को, गवाहियों को, जो वीडियो टेस्टमनीज है उसको आपने पूरे ध्यान से सुनना है कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में काम किया, हील किया, डिलीवरेंस दी और बड़े काम किए। वीडियो टेस्टमनीज जब आप सुनोगे तो लोग प्रॉपरली बताते हैं कि क्या हमारी जिंदगी में उस समय प्रॉब्लम चल रही थी, कैसे हम मसीह में आए, कैसे परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में बड़ा और अद्भुत काम किया। और मेरा ये विश्वास है कि जब आज आप वीडियो टेस्टमनीज को आप सुनोगे, गवाहियों को सुनोगे, तो आपको समझ आएगी कि परमेश्वर किस तरह से और कैसे बड़े और अद्भुत काम करने की ताकत रखते हैं। तो आइए उन बड़े कामों को देखते हैं। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪਈ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸੂਏ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਮੰਥ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੰਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪਈ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 8 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸ ਲਈ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਡ ਡ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ 9 ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 23 ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रितु है और ये मेरी सिस्टर मोनिका है। हम लुधियाना के रहने वाले हैं और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2021 की बात है, मेरे को खांसी रहना शुरू हुआ और जब मेरे को खांसी रहना शुरू हुआ तो सांस लेने में मुझे दिक्कत आती थी और मेरी छाती ब्लॉक रहती थी। तो इसके साथ साथ ही मुझे फीवर रहना शुरू हो गया। फिर मैंने लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी और उसके बाद फिर घर भेज दिया। तो उसके बाद मैंने 10-15 दिन वो मेडिसिन खाई तो उससे मुझे कोई आराम नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर को चेंज करके देखती हूँ। तो मैंने डॉक्टर को चेंज किया, तो मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो सेम उन्होंने भी मुझे ऐसे ही मेडिसिन दी और घर भेज दिया। फिर मैंने वो मेडिसिन रेगुलर खाई तो उससे मुझे कोई आराम नहीं लगा। फिर ऐसे ही करते करते मैंने 2 से 3 लोकल डॉक्टर को दिखाया तो उनकी मेडिसिन से मुझे कोई भी आराम नहीं लगा। मेरी जो तबीयत है वो और ज़्यादा बिगड़ती चली गई।
फिर ऐसे ही करते करते मतलब मेरे को मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। मैं कुछ भी खाती थी तो मुझे ब्लड की वॉमिट आती थी। अगर मैं पानी तक भी पीती थी तो मुझे वो पचता नहीं था, मुझे ब्लड की वॉमिट हो जाती थी। जब मेरी सिस्टर को ब्लड वाली वॉमिटिंग आना स्टार्ट हुआ उसके बाद हम सारे फैमिली वाले डर गए। फिर मेरी फैमिली इनको एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ डॉक्टर ने इनके चेकअप किए। जब डॉक्टर ने मेरी सिस्टर के सारे टेस्ट किए, एक्सरे किए, तो फिर हमें बताया कि इनको लंग्स की टीबी है। जब डॉक्टर ने इनके सारे टेस्ट करके एक्सरे करके हमें बताया कि इनको लंग्स की टीबी हो गई है तो हमारी पूरी फैमिली डर गई। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको तुरंत एडमिट करना पड़ेगा और इनकी दवाई चलेगी। और हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि हम इनको तुरंत एडमिट करा सके, इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि इनकी साल मेडिसिन चलेगी और इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर मेरी सिस्टर लगातार मेडिसिन खाते गए, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद भी इनकी जो प्रॉब्लम थी वो और अधिक बढ़ती जा रही थी। जब भी मेरी सिस्टर कुछ खाते थे इनको ब्लड वाली वॉमिटिंग आती थी। अगर ये पानी भी पीते थे तो इनको ब्लड वाली वॉमिटिंग आती थी और इनको रात को सोने में प्रॉब्लम होती थी, अच्छे तरीके से सो नहीं पाते थे और सांस लेने में भी इनको बहुत दिक्कत होती थी और दिन पर दिन ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। ये पूरी तरह बेड पे चले गए थे। डॉक्टर ने बोला कि इनका खाना पीना, इनके कपड़े, इनके बर्तन सब कुछ इनका अलग होगा और हम इनको एक रूम में रखते थे जहाँ यही रहते थे, कोई भी उस रूम में ज़्यादा नहीं जाता था और इनकी देखभाल मेरी फैमिली करती थी, मम्मी करते थे। इनको टॉयलेट वॉशरूम भी मेरे मम्मी लेके जाते थे और घर पे एक पर्सन हमेशा इनके साथ रहता था जो इनकी देखभाल करे। जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तो मुझे ब्लड की वॉमिट आती थी, मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती थी, मैं पूरी तरह से लिक्विड पे थी और जो मैं लिक्विड पीती थी वो भी वॉमिट के द्वारा ब्लड के रूप में बाहर आ जाता था। और जब मैं टॉयलेट जाती थी तो टॉयलेट में भी मेरी ब्लड आता था। इस रोग की वजह से जब मेरी ऐसी कंडीशन थी तो मैं चल फिर नहीं पाती थी, मेरा ब्लड बहुत कम हो गया था, मुझे चलते हुए चक्कर आते थे। डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपका ब्लड कम है, तो अगर आपने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आप बच नहीं पाओगे। जब मैंने डॉक्टर की मुंह से ये बात सुनी तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत परेशान हुई और मेरी फैमिली भी इस बात को सुन के हम सारे बहुत परेशान हुए। जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे पीरियड्स भी आना बंद हो गए। तो जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी तो दिन पर दिन मेरा जो वज़न है वो कम होता जा रहा था। मेरा वेट 25 किलो रह गया था। मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली पे डिपेंड थी, वही मेरी देख रेख करते थे। मुझे जैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वही मुझे लेके जाते थे। मैं पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड थी। तो जब मैं इस कंडीशन में थी तो बेड पे जब मैं लेटी रहती थी तो मेरे मन में कई तरह के नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो पा रही थी मेडिसिन से। लेकिन जब मेरी सिस्टर की इतनी बुरी कंडीशन थी तब भी मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था और मैं खामरा चर्च के साथ पहले से जुड़ी हुई थी। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि आप ऑनलाइन मीटिंग देखो, परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। पहले तो ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं इन्हें गवाहियाँ सुनाती थी और मीटिंग देखने के लिए बोलती थी। तो ये लगातार मीटिंग्स को देखते थे, गवाहियों को इन्होंने लगातार सुना। तो जैसे धीरे धीरे मीटिंग्स को अटेंड करते गए तो इनका विश्वास परमेश्वर में बढ़ता गया। फिर मैंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया और प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया। तो फिर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। जब मैं गवाहियों को सुनती थी तो मेरा विश्वास होता था कि जब इतने लोग ठीक होते हैं तो परमेश्वर मुझे भी चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। फिर 2 जून 2023 को मैं खामरा चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रही थी तो उसमें परमेश्वर के दास बीमारियों की गंदी आत्मा को डांट रहे थे। चंगे हो जाओ इन जीसस नेम। पेन्स तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जा रही है, तुम हील हो चुके हो यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। ये आशीष तुम्हारी है। जब उस सामर्थ्य प्रेयर को मैंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई चीज़ मुझे छोड़ के गई है और मेरी बॉडी एकदम से हल्की हो गई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब मैंने खाना खाया तो मैं सब कुछ खा पा रही थी और मुझे कोई वॉमिट नहीं आई और जब मैंने पानी पिया तब भी मुझे कोई वॉमिट नहीं आई, सब चीज़ें मैं खा पा रही थी। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो अपने टेस्ट कराने, तो फिर उन्होंने मेरे टेस्ट किए टीवी के दोबारा से, तो वो मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए और डॉक्टर हैरान हुए इस बात से कि आपने इतनी जल्दी कैसे कवर किया। फिर मैंने उनको बताया कि जो प्रभु यीशु मसीह है
मैंने उन पे विश्वास किया और उन्होंने ही मुझे चंगा किया है। अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। अब मुझे कोई लंग्स टीबी नहीं है। अब मुझे कोई ब्लड की वॉमिट नहीं आती है। अब मुझे सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। अब मैं चल फिर सकती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ। अब मुझे कोई चक्कर नहीं आता है। परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे परमानेंट हीलिंग दी। अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया है। और अब मैं सुसमाचार भी करती हूँ, लोगों को अपनी टेस्टमनी भी बताती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, फास्टिंग भी करती हूँ और मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ। अब मैं अकेली नहीं रहती। अब मैं परमेश्वर की दया से अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करती हूँ। अब मेरी लाइफ में कोई भी दुख, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। अब मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है और ये जो कुछ भी खाते हैं वो हजम कर लेते हैं। इनको कोई ब्लड वाली वॉमिटिंग नहीं आती। हम अब पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, हम पूरे एंजॉय में हैं। और मेरी सिस्टर अब अकेली भी जा सकती है, आ सकती है और अभी इसका ब्लड भी जो है वो प्रॉपर बन गया है। जिन लोगों को आज भी टीबी की, कैंसर की या कोई भी बीमारी है, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर पे विश्वास करो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जैसे उसने मेरे जीवन में जीवित काम को किया है, बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया है, वो आप सबको भी बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर पे विश्वास करो, उसमें बने रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम हरिशंकर पासवान, मेरी बेटी का नाम पूजा कुमारी। हम झारखंड के रहने वाले हैं। आज मैं अपने बेटी के जीवन की सबसे बड़ा गवाही देने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरी बेटी के जीवन में कैसे बड़ा काम किया। 2017 की बात है, हमारी बेटी को फीवर आया और फीवर आने के बाद हमने लोकल डॉक्टर से दिखाया। लोकल डॉक्टर मेडिसिन दिए। ठीक होने के बजाय दिन पर दिन इसकी समस्या और बढ़ती गई। इसकी बॉडी बेसुध रहने लगी। धीरे धीरे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और बुखार फिर से चढ़ा और ये ब्लड की उल्टी की। जब मेरी बेटी को ब्लड की उल्टी आई तो हम घबरा गए और फटाफट हमने अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गया और वहाँ चेकअप कराने के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की को ब्लड की कमी है, इसको ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। तो हमने ब्लड का अरेंज किया। वहाँ पे 2-3 दिन भर्ती रही। इसके बाद हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिली। इसके बाद हम लोग घर परिवार में आ गए और फिर से इसको 3 महीने के बाद फिर से इसको ब्लड की उल्टी आई। फिर हमने अपने बेटी को झारखंड के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने इसको फिर से ब्लड चढ़ाया और मेडिसिन दी। तो ये बेटी फिर से 3 महीना तक सही रही। फिर 3 महीने के बाद इसको फिर से ब्लड की उल्टी आई, बुखार आया, फिर ब्लड उल्टी की। जब मेरी बेटी को तीसरी बार खून की उल्टी आई तो हमने बनारस के बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके गए। डॉक्टर ने सारे इसके टेस्ट वगैरह किए तो उन्होंने बताया कि इसका लीवर में इन्फेक्शन है और फूड पाइप स्वेल हो गई है और फेफड़े में पानी भर चुका है। इसी के साथ हमें डॉक्टर ने बताया कि इसका ब्लड 4 ग्राम रह गया है। जल्दी से जल्दी आपको ब्लड का अरेंज करना पड़ेगा, तभी हम इसका इलाज शुरू कर पाएंगे। इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। डॉक्टर ने आईसीयू में भर्ती कर दिया और ऑक्सीजन लगा दिया। जब मेरी बेटी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया तो इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा करके इसके बैक साइड से फेफड़े से बड़ा जो सिरिंज होता है उससे लाल पानी निकालते थे। उस पानी को निकालने के दौरान मेरी बेटी को बहुत दिक्कत तकलीफ़ होती थी। 8 दिन आईसीयू में भर्ती होने के बाद मेरी बेटी को सारा ट्रीटमेंट करने के बाद में वहाँ से हमें छुट्टी दिया गया।
हर 21 दिन में हॉस्पिटल जाने के लिए हमें डॉक्टर बुलाते थे कि हर 21 दिन में आपको आना पड़ेगा और इलाज कराना पड़ेगा। ये बच्ची छोटी थी, उस समय 2-2.5 साल की थी। डॉक्टरों ने बोला कि ये 2 साल 2.5 साल की है, इसको बार बार बेहोश करना अच्छा नहीं है। तो इसको बिना बेहोशी के जब पाइप इंडोस्कोपी का जब पाइप डालते थे तो ये बहुत चिल्लाती थी, बहुत रोती थी, बहुत दर्द होता था। जब हम हॉस्पिटल से इसको घर लेकर के आए तो ये 3-4 महीने तक मेरी बेटी सही रही। फिर से इसको ब्लड की उल्टी आई और उस ब्लड की उल्टी में मांस के टुकड़े जैसा ब्लड जम कर निकल कर था। जब मेरी बेटी को ऐसे मांस के टुकड़े निकलते थे तो हम लोग पति पत्नी दोनों रोने लगे, घबरा गए। तो लोगों ने बताया कि अन्य जगह पर लेके जाओ, तो मैंने बहुत से अन्य जगहों पर लेके गया। वहाँ से भी मेरी बेटी को कोई आराम नहीं मिला। इस कारण मेरी बेटी कुछ भी खाना पीना नहीं खाती थी और इसको लिक्विड थोड़ा थोड़ा हम लोग देते थे। और जहाँ भी जो हॉस्पिटल में जाते थे वो सेम प्रॉब्लम बताता था कि इसको ब्लड जो फूड पाइप से एक जगह जमा हो जाता था, जिसके कारण ये इसको लैट्रिन से भी ब्लड आता था और उल्टी से भी ब्लड आता था। जिस भी हॉस्पिटल में हम जाते थे वहाँ के सब डॉक्टर लोग बोलते थे कि ये जब तक रहेगी तब तक मेडिसिन के ऊपर रहेगी। तो बनारस से हमें वहाँ से रेफ़र कर दिए। फिर हमने लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में PGI में लेकर इसको भर्ती कराया। वहाँ के डॉक्टर सेम प्रॉब्लम बताया, वहाँ भी इंडोस्कोपी हुआ और वहाँ भी बहुत दिनों तक मैंने दवाइयाँ इसको दिलाई और इलाज करवाया। वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक डॉक्टर ने बताया कि लास्ट चांस है इसका, अगर एक बार भी ब्लड की उल्टी आ जाए तो इसको कोई नहीं बचा सकता है। इस कारण मैं और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा ही कुछ डिप्रेशन में चले गए और हम दोनों का बहुत रो कर हालत ख़राब हो चुका था। ये खाना बहुत कम खाती थी और ज़्यादा लिक्विड पर रहती थी, इस कारण ये बहुत कमज़ोर होने लगी। इस बीमारी के कारण हमारी बेटी खेलती नहीं थी और बच्चों की तरह कहीं नहीं जाती थी। हम इसको घर के अलावा और कहीं नहीं जाने देते थे, अकेले छोड़ते नहीं थे कि इसको कभी भी प्रॉब्लम बढ़ सकता था। इसको हम बहुत मैंने सपने देखे थे कि स्कूल भेजेंगे, अपने बच्चों के पड़ोस के बच्चों के साथ हम स्कूल भेजेंगे, इसके नए नए कपड़े लेंगे और इसको हमेशा खुशी में रखेंगे, ऐसे हम सोचते रहते थे। फिर इस दौरान इसकी हालत को देख कर के हमारे पड़ोसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया कि आप बहुत जगह जा चुके हो, एक बार मेरे साथ खामरा चर्च चलो। उन्होंने बताया कि वहाँ पे बीमार चंगे होते हैं, कोढ़ी सूद होते हैं और बहुत से रोगियों से लोग ठीक होते हैं। जब मैं अपनी बेटी को खामरा चर्च लेकर आया तो यहाँ गवाहियों को सुना, बड़े बड़े बीमारियों से लोग ठीक हो रहे थे, टीबी से, कैंसर से ठीक हो रहे थे। तो मुझे भी फेथ हुआ, मुझे भी विश्वास जगा कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं ठीक होगी। मैंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया। मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर और बढ़ता गया। 24 जुलाई 2022 को मैं खामरा चर्च में मौजूद था। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए और मैं उस प्रार्थना को अपनी बेटी के लिए दिल से रिसीव किया। अपने हाथों को उठाएंगे, हर वो चीज जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपकी फैमिली, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम, उसे टच करेंगे राइट नाउ। होली गोस्ट फायर से टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे, टच करते, टच करते, टच करते, टच करते, बॉडी को टच करते, सिस्टम को टच करते, स्पिरिचुअल लाइफ को टच करते, शरीरों को टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, परमेश्वर की सामर्थ से टच करते, टच करते, टच करते, टच करते, बीमार शरीरों को टच करते, टच करते, टच करते, टच करते। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, ना इसको खून की उल्टी नहीं होती है। डॉक्टर लोग बोलते थे कि इसको जीवन भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं खाती, अच्छे से सोती है, अच्छे से खेलती है, पूरा खुश रहती है। अब मेरी बेटी को कभी हॉस्पिटल लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मेरी बेटी अच्छी से खेलती कूदती है, स्कूल भी जाती है। जो लोग बोलते थे कि तुम्हारी बेटी ठीक नहीं होगी, सारी उम्र ऐसे ही रहेगी, उन्होंने मेरे से पूछा कि ये बेटी कहाँ, इस बेटी को लेकर के कहाँ गए थे, तो मैंने बोला कि मेरी बेटी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं अच्छे से खाना खाती हूँ, अब मैं अच्छे से सोती हूँ, अब मैं अच्छे से खेलती हूँ। अब मैं अपनी मम्मा पापा के साथ घूमने भी जाती हूँ, अब पढ़ते भी और स्कूल भी जाती हूँ।
जिनके बच्चे आज भी बीमार हैं, बड़े बड़े परेशानी, बड़े बड़े बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें सही सलाह देना चाहता हूँ कि डॉक्टर जवाब देते हैं लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी जवाब नहीं देता है। मेरा विश्वास है जिस प्रकार मेरी बेटी को परमेश्वर ने चंगा किया, आपके भी बच्चे को परमेश्वर चंगा करेगा। मैं अपनी बेटी के इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास दासी को मैं धन्यवाद करता हूँ। सारे को जय मसीह।